Hi everyone, a very warm welcome to our YouTube channel. Let's get started with the daily analysis of Nifty and Bank Nifty. Before even starting into the analysis, I'm humbly accepting that my analysis has gone wrong. Markets did make a fresh ATH just a day before the election results, which was on 3rd of June, where Nifty made a high of 23,300 and Bank Nifty roughly around 51,100. However, the very next day it broke with a very huge red candle. So we will definitely discuss that what happened yesterday, but I just wanted to accept it that my analysis has definitely gone wrong. Let's first discuss what happened yesterday because yesterday I didn't turn up. So after this massive gap up and closing almost a day's high, everyone were expecting market to either open flat or most likely gap up. In fact, my view was also market would likely to open with a gap up, both in Bank Nifty and Nifty. However, like before the market opens, the counting starts. There was some disappointment from the BJP numbers or the total NDA numbers, and thereafter the market starts correcting. The reason being, we always say this, that the markets are a discounting mechanism. So market had already factored in at least 272 seats for BJP alone, which means a clear majority of BJP, and then it would form a government. But yesterday, it was a shocker when the exit polls were much more different than what the exact polls were. Just to give you an example, it was like whenever we discuss about the earnings, whenever the people anticipate that the company is going to post at least 8% or 10% profit this year, and suddenly the company posts just 1 or 2% profit, markets would usually punish that kind of a stock. Or let's assume as a student, whenever we come back after giving a paper, our parents usually ask us how was the paper and what do you think you will score like, and we overconfidently say that I'll be at least scoring 90% or 95%, and turns out when the result comes out you are barely 60% there. So obviously you will get a thrashing. Obviously, the expectations versus reality is a total mismatch, and exactly that's what happened yesterday. And that's why market were discounting that the numbers will be at least 272 just for BJP, which didn't happen, and that's the reason market started to correct immediately. And market has got no mercy. So what I say, whenever there is a budget day or an election, basically a huge news or a huge event kind of a day, no supports or no resistances will work that day. So we have definitely talked about that particular thing, like how negative the day was and everything. Now looking at the positive part, we actually recovered 6.5% from yesterday's day low. So just to show you, if this is the 50%, can you see this? We actually are above 61.8% mark now from the 3rd June high, which means more than 60% has been recovered. The entire fall, more than 60% has been recovered right now. So now what we are expecting, now see, this is a very huge candle. I'm expecting lot of inside bar throughout few series at least, for some weeks at least, and then we might see some sort of a direction move. But unless there is a clear formation of the government and so on and so forth, we might see series of inside bars within this particular. Now coming to the good part, another thing is, this was the breakout candle on the weekly time frame, and can you see this huge wick? Now it is very important that on the weekly basis this should only be a wick and not a candle. We can definitely say that the buyers are very strong from this levels of 21,200, that the buyers are very strong and they ensure that the weekly closing candle is not below 22,600 or 22,500, whatever that level is. So we'll see, we will definitely observe this candle on the weekly, which would be on Friday. So we will definitely discuss in detail on multi-time frame analysis. Now let's go to daily. Today was an inside bar. I'm expecting strangles to work out tomorrow because it's an inside bar. Now in inside bar, we usually say if the inside bar high or low is taken out, then we will go in that particular direction. Now the problem with this kind of an inside bar is, this inside bar is not a usual inside bar. For example, I'll just show you here. Now look at this particular thing. This is an inside bar. Look at the inside bar range. It is hardly less than 1%. Now look at this inside bar range. It is 4%. So by all means, this is not an usual inside bar. But since the ends are very huge, so we might expect market to reward stranglers tomorrow, albeit with spikes, which happened today also in Bank Nifty. Let's go on 15-minute time frame to understand what are the supports and resistance. So 22,220 is the immediate support. This zone will act as an immediate support. This will act as an immediate resistance. Now the problem is the daily range of the market has increased a lot. So we are talking about this kind of huge ranges in a daily thing. So here are the resistances and the supports that have been mentioned.
I am not expecting market to take this kind of a low immediately, which is yesterday's low, immediately, unless there is much more adverse news which might impact. And that adverse news could be only and only, let's say, if something on the political side happens, wherein, you know, some other government only itself comes into play. If that happens, only then I will expect this level to be taken out. Unless that happens, I am not expecting market to take this particular level out immediately. I'm talking about immediate on a shorter time frame. On a higher time frame, I'm not expecting market to take this high, at least in this particular week. So let's see what happens. If it does, then it clearly shows that the market is very bullish and this was more of a knee-jerk reaction. And remember, markets are always slaves to the earnings on longer time frame, which means they only care about the earnings and the growth of the company. In short term, they are very reactive and sensitive to the news flows. Like short term could be like Pulwama attack, or for that matter, it could be 9/11. So markets or budget day. So all these things definitely impact on shorter time frame, but markets are slaves to earnings when it comes to the longer time frame. Within a week's time or maybe 10 days time, we are even going to forget that something like this has happened, and thereafter we will definitely look forward to some other trigger or to some other upcoming event. Which reminds me, Friday we have RBI policy, so then, you know, all eyes will be on that RBI policy soon. One more good thing is that we saw a huge W on the 15-minute time frame, and we got a breakout of this particular W, or retest, and the market is on the upside. This particular pattern is really good because market showed that it made a W immediately, and it is very clear that it is almost a V-shaped recovery, isn't it? Like, just imagine the entire fall gets recovered, the 50% of the entire fall gets recovered within a single day. So that definitely shows that it is a clear V-shaped recovery, which means that the bulls are still strong. Now the problem what had happened today, for those of you who were expecting that it is a sell on rise market, the problem was, if you were trying to sell here and you got rewarded and you kept on, you held on to your sell position, and then the market made this kind of a move, obviously you will be in loss. So these are not easy moves, because the candle size is very huge in 15-minute time frame as well. So it's not easy to manage. It is got full, this particular market is full of spikes. So for tomorrow, let's discuss what we can do tomorrow. Tomorrow, let's say if we are opening flat, I'm expecting to place triangles. If we are opening gap up somewhere around these levels, then I'm expecting market to first come down a bit. Maybe it might take some support here and then be volatile only. So I'm expecting again triangles. Let's say if we open with a gap down of around this level, I'm expecting market to take this level as a support, try to turn up, and then might do this and this again, a triangle. So in all three cases it will be a triangle. हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरी जो एनालिसिस थी अपमूव की तरफ, वो रॉन्ग साबित हो चुकी है। हालांकि ये लेवल तक मेरी एनालिसिस सही चली थी, और यहाँ तक डेफिनेटली किसी ने इस टाइम पे सोचा भी नहीं था कि 23,100 तक आएगा, बट डेफिनेटली मैंने ये वाली इतनी बड़ी कैंडल एक्सपेक्ट नहीं की थी। अब उसका प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर एग्जिट पोल्स में सब लोगों ने मान के चले थे कि 272 तो क्लियर खाली बीजेपी के सीट्स आएंगे, बट जबकि वैसा हुआ नहीं और थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा, तो मार्केट ने एकदम सा नी-जर्क रिएक्शन जिसको हम बोलते हैं, उसने वो दे दिया। बट रिमेंबर, मार्केट हमेशा लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो मार्केट क्या चीज को रिवॉर्ड करते हैं, जो मार्केट कंपनी की अर्निंग्स के हिसाब से चलती है, ना कि कोई एक स्पेसिफिक इवेंट की वजह से चलती है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो शॉर्टर टर्म में जो इवेंट्स आती है, जैसे पुलवामा अटैक हो गया, बजट हो गया, या फिर कोई ऐसे न्यूज आ गई जैसे कि HDFC बैंक की कोई तो प्रॉब्लम्स हो गई, तो ये सब शॉर्ट टर्म के नी-जर्क रिएक्शंस होते हैं। या तो फिर कोटक की कोई न्यूज आ जाती है, तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे थोड़ी सी नी-जर्क रिएक्शंस आती है। बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मार्केट हमेशा अर्निंग्स के ऊपर, बड़े व्यू के हिसाब से अगर आप देखोगे तो अर्निंग्स के ऊपर ही वो इसको वैल्यू करती है, मतलब प्राइसेस जो रिफ्लेक्ट करते हैं वो अर्निंग्स के ऊपर ही रिफ्लेक्ट करते हैं। सो अब कल यहाँ पर ये डेफिनेटली हुआ, इतना बड़ा नी जर्क रिएक्शन हुआ, ये तो बुरा तो सब लोगों ने देख लिया, राइट? ये तो आपको सब बताएंगे, आप कोई भी चैनल पे देखिएगा, आप न्यूज चैनल भी चालू कर दोगे तो आप वहां पर भी आप सुनने में आएगा, तो बुरा तो आपको सब जगह पर सुनने को मिलेगा। अब हम देखते हैं कि अच्छा में क्या है। वीकली में चलते हैं, कोई भी एक हायर टाइम फ्रेम पे चलोगे आप, तो आपको दिखेगा ये इतनी लंबी कैंडल है, ये क्या दर्शाता है? ये बुल्स की स्ट्रेंथ को ही दर्शाता है। अभी भी अगर आप देखोगे तो क्लोजिंग 22,600 के आसपास है।
हालांकि याद रखिएगा ये अभी तक वीकली की कैंडल की क्लोजिंग हुई नहीं है और 2 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है, उसके बाद हम इस पर्टिकुलर वीक को स्टडी करेंगे हमारे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में। अगर ये ऐसी कोई क्लोजिंग आती है तो फिर भी अच्छी है, बिकॉज ये हमको बुल्स की स्ट्रेंथ दर्शाती है और ऐसा दिखाएगा कि वो जो ये फॉल था ये लोगों ने एज एन अपॉर्चुनिटी यूटिलाइज की और बुल्स ने ऊपर की तरफ जाने के लिए वो लेवल यूटिलाइज की। अब डेली में आते हैं। डेली में अनदर थिंग इज, डेली में ये है कि ये जितनी फॉल हुई थी उसका मोर देन 50% तो इसने रिट्रेस कर भी लिया है, विच मीन्स इट्स अ वी शेप रिकवरी। हम लोग देखते हैं 15 मिनट्स में। 15 मिनट्स में मैं आपको वही बता रही थी, जैसे ये इसकी वी शेप रिकवरी है। वी शेप रिकवरी अगेन शोज की यहाँ की जो बायर्स है इन लोगों ने ये पर्टिकुलर फॉल को अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया है। दूसरी ये है कि अगर आप देखोगे मार्केट ने यहाँ पर डब्ल्यू बनाया और उसका ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया और ऊपर की तरफ चली गई। अब तीसरी क्या है, तीसरी एक और चीज ये है कि इसका जो ऑल टाइम हाई था मार्केट की, वहां से अगर आप देखोगे तो कितना है, सिर्फ 3% अवे फ्रॉम द ऑल टाइम हाई है, जो कि मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है मार्केट को कभी भी कवर करने के लिए। अब आते हैं कि हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि याद रखिएगा ये कोई नॉर्मल सा कैंडल रेंज नहीं है, ये बहुत ही बड़ी कैंडल रेंज है। 8% का कल का रेंज था और आज भी कहीं ना कहीं ये 4% का रेंज था। इनसाइड कैंडल है बट ये कोई नॉर्मल इनसाइड कैंडल नहीं है। इसके लिए हम इसमें मोस्ट लाइकली प्ले करेंगे ट्रायंगल्स में। मैं क्योंकि प्रीमियम्स बहुत अच्छे है तो आप इसके जो बॉर्डर्स है इसको प्ले कर सकते हो, जैसे कि ये वाले लेवल और ये लेवल्स को आप प्ले कर सकते हो। हालांकि इट वॉन्ट बी इजी बिकॉज स्पाइक्स बहुत होती रहेगी। आज जैसे बैंक निफ्टी में भी काफी स्पाइक हुई थी कॉल्स, तो अगर आप देखोगे तो इट वॉन्ट बी इजी। अब कोई भी सिनेरियो ले लो, आप गैप अप ले लो, गैप डाउन ले लो या फ्लैट ले लो, तीनों केसेस में आई वुड लाइक टू प्ले ओनली ट्रायंगल्स इन केस ऑफ निफ्टी फॉर टुमारो। ठीक है, फिर हम देखते हैं क्या होता है। अभी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मार्केट एक सीरीज ऑफ इनसाइड कैंडल बना सकती है फॉर फ्यू मोर डेज, जब तक ये पर्टिकुलर रेंज में जब तक मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है। अब प्रॉब्लम क्या है, ये रेंज काफी बड़ी है, काफी वॉलेटिलिटी मिलेगी आपको फॉर अपकमिंग डेज। आपको ऐसा दिखेगा कि एक तो कैंडल्स भी काफी बड़ी बड़ी बन रही है, हर 15 मिनट की कैंडल की रेंज भी काफी बढ़ गई है। इसको सेटल होने के लिए हमको एटलीस्ट 1 वीक वगैरह लग सकता है। और ऐसे भी अगर आप देखोगे जैसे कि अभी माहौल में बहुत सारी चीजें चल रही है कि कौन सी गवर्नमेंट आएगी, किसकी आएगी एंड सो फोर्थ, तो जब भी वो भी सेटल डाउन होगा तो कहाँ ना कहाँ मार्केट्स की भी जो जिटरीनेस है वो रिड्यूस हो जाएगी। जो एक्सपेंशन हुई है वॉलेटिलिटी में वो भी थोड़ी सी कंप्रेस आउट हो जाएगी। फिर हम देखेंगे कि किस तरफ जाने के चांसेस है और क्या है। तो लेट 1 वीक पास, आई वुड रिकमेंड नॉट टू बेट हेवीली, थोड़ा सी वॉलेटिलिटी कम होने दीजिएगा। कमिंग टू बैंक निफ्टी, अगेन सेम स्टोरी, inside bar a big fall, made a fresh high of 51,100 and thereafter a big fall. No supports were respected and it made a huge fall. The good news is, can you see this, iski jo the highest weekly closing that we had got in case of bank nifty was a particular week, this one, the closing was I'm just reading it out, 48,983। तो ये सबसे अच्छी क्लोजिंग थी हमारे लिए, जो कि लास्ट वीक की क्लोजिंग थी, अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग थी, जो कि 48,983 की थी। आज की जो क्लोजिंग है वो 49,054 की ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। हालांकि हमको वीकली के लिए और 2 दिन वेट करना पड़ेगा, बट मान लीजिएगा अगर हमको वीकली की क्लोजिंग इसके लेवल पे मिल जाती है, इसका मतलब फिर क्लियर हो गया कि ये जो लेवल था, ये पर्टिकुलर लो था, ये बायर्स ने यूटिलाइज किया एज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय द डिप और फिर वो मार्केट को और ऊपर ले जा सकते हैं। ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा मेरे मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में, मैं ये वीकली में ये हमेशा आपको दिखता होगा, रेजिस्टेंस बनी करती थी और ये यहाँ पर सपोर्ट बन गई। मार्केट बिल्कुल उसी के आसपास आके सपोर्ट ली है कल। हालांकि इट्स इजी टू से पोस्टमार्टम जब होने के बाद, कल जब मार्केट गिर रही थी, अगर आप मेरे को पूछते कि कहा है सपोर्ट, इवन आई डिडंट न्यू कि कल कहा था सपोर्ट, क्योंकि मैंने यूजुअली देखा है कि उस टाइम पे मार्केट इतने टेक्निकल्स को ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करता है। एनीवेज, कमिंग टू द डेली टाइम फ्रेम, अगेन इन इनसाइड बार, बट आप बोलोगे इनसाइड बार मतलब इनसाइड बार चाइल्ड बार की हाई या लो ब्रेक करने पे प्ले करे। द आंसर इज स्ट्रिक्ट नो, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट अ यूजुअल इनसाइड बार। रिमेंबर, द काइंड ऑफ इनसाइड बार दैट वी आर यूज्ड टू प्ले वुड बी समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। दिस इज एन इनसाइड बार wherein the range of the day would be hardly less than 1%, and look at this one, this is like 6%। तो ये कोई मामूली सा इनसाइड बार नहीं है। इनफैक्ट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू मेक सीरीज ऑफ इनसाइड बार फॉर फ्यू मोर डेज, मतलब विद इन दिस हायर रेंज। लेट्स सी, बट अगर हमको ये हो जाता है कि एक हफ्ते के अंदर अगर हमको क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन किसकी गवर्नमेंट हो रही है, क्या हो रही है, तो फिर ये जिटरीनेस कम हो जाएगी एंड वी माइट सी मार्केट टू स्टेबलाइज समवेयर। उसके बाद हम कॉल लेते कहाँ पर है,
अगर आप मेरे को अभी पूछोगे कि क्या लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा है कोई सेल ऑन राइज भी है अभी तक। बाय ऑन डिप्स तो अभी भी लग रही है। द रीजन भी, आप लोग पूछे कि बाय ऑन डिप्स क्यों लग रहा है, बाय ऑन डिप्स इसके लिए लग रहा है क्योंकि इसने डब्ल्यू बनाया और इमीडिएटली इसने एक वाली अपमूव दी। दूसरी चीज ये है, इसने इतनी शार्प वी शेप वाली रिकवरी दी, तो मतलब ये भी बनता है कि अभी तक इतना बुरा भी नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कल मार्केट ने ओवर रिएक्ट किया था और इतना इतना बुरा भी नहीं है सिचुएशन, बिकॉज स्टिल द गवर्नमेंट इज फॉर्मिंग, द बीजेपी इज डेफिनेटली, मतलब द एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। लोगों ने ऑफकोर्स एस्टिमेट के हिसाब से बीजेपी की ही अकेले की सीट्स 272 एक्सपेक्ट की थी, बट हालांकि इतनी बुरी नहीं। दूसरी चीज, ये खाली 4.68% और रफली 5% अवे फ्रॉम एटीएच है, तो दैट इज ऑल्सो अनदर पॉजिटिव। मतलब ये सारी चीजें पॉजिटिव है, पर थोड़ी टाइम लगेगी, थोड़े से टाइम करेक्शन होने के चांसेस है, बिकॉज ये पर्टिकुलर रेंज काफी बड़ी है। बट मुझे लगता है मोर और लेस हमको एक क्लैरिटी मिल जाएगी जैसे ही एक आधा हफ्ते हो जाता है, और उसके बाद हमको क्लैरिटी मिलेगी। अभी द नेक्स्ट ट्रिगर पॉइंट क्या है, हमको फ्राइडे को हमारे लिए आरबीआई की एक पॉलिसी है, तो वहां पर रहेगा, और उसके बाद में भी एक या 2 वीक के बाद तो हम खुद भी भूल जाएंगे कि मतलब इसके ऊपर बात भी करना छोड़ देंगे मार्केट में। तो उसके बाद मार्केट विल लुक फॉर न्यू ट्रिगर्स। इट कुड बी मे बी द अपकमिंग वीक में जो यूएस की इन्फ्लेशन डेटा है, या यूएस की फेड पॉलिसी है, या उसके बाद हमारे यहाँ पर जब बजट आएगी उसके ऊपर फिर ट्रिगर पॉइंट्स शिफ्ट हो जाएंगे। तो पोर्टफोलियो वालों के लिए कुछ ही नहीं करना है, अभी भी होल्ड ही करके रखना है। और ये बेसिकली, ये मैंने क्या ड्रॉ किया था, ये बेसिकली एक फॉलिंग चैनल बन रहा था सुबह और इसका ब्रेकआउट हुआ और मार्केट एक तरफ ऊपर चला गया, तो वही मैंने ड्रॉ किया है। आई विल जस्ट टेक इट ऑफ। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो एक क्लीन डब्ल्यू भी तो है, यहाँ पर एक क्लीन डब्ल्यू है और उसको मार्केट ने एक अच्छा वाला मूव दिया है। अभी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि मार्केट विल टेक दिस लो अंटिल एंड अनलेस देयर इज वेरी वेरी एडवर्स न्यूज, जो कि ऐसा कुछ आएगा कि ये गवर्नमेंट नहीं कोई और गवर्नमेंट बन रही है, तभी कुछ हो पाएगा, वरना तो मेरे को ये जो बॉटम है, ये मेरे को लगता है इंटरमीडिएट के लिए, मतलब इमीडिएट टर्म के लिए ये बॉटम बन चुकी है, और शायद ये लेवल को शायद जल्द ही टेस्ट ना करे मार्केट। लेट्स सी, बट एज आई सेड ये न्यूज है, यहाँ पर कुछ ऐसा पक्का वाला नहीं होता, ये न्यूज एनवायरनमेंट में है हम अभी एज ऑफ नाउ। तो फॉर टुमारो इन बैंक निफ्टी ऑल्सो आई एम एक्सपेक्टिंग स्ट्रैंगल्स टू प्ले आउट यहाँ पर वगैरह, लेकिन कहीं पर ओपन हो जाती है तो थोड़ा सा सेलिंग आने के चांसेस ज्यादा है यहाँ पर अगर आती है तो, क्योंकि अभी मार्केट में बेसिकली दोनों साइड की मूव आई है, सेलर्स की और बायर्स की। थोड़ा सा मार्केट को साइडवेज होकर थोड़ा सा जो रेंज है उसका कंप्रेस करने की जरूरत है, तो वॉलेटिलिटी विल आल्सो कूल ऑफ। देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच वाज माय लर्निंग यस्टरडे, that it comes to the India Wix part and I'll show you on the charts as well। ये India Wix की चार्ट है and see this was the candle। ये बस याद रखिएगा ये इलेक्शन डे का कैंडल था। अगर आप देखोगे ये ऑल द वे इसने 31 मारा था और इसने नया हाई क्लोजिंग बेसिस पे भी नया हाई बनाया था इंडिया विक्स के। अब आप देखिएगा कि इसके पहले वाला जो विक्स जब भी होती थी, जैसे कि 2019 की जो इलेक्शन थी, यहाँ पर अगर आप देखो ये इलेक्शन जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, देख रहा है आपको 30% का फॉल हुआ था सेम डे। अगेन यहाँ पर इलेक्शन की रिजल्ट डेट हुई थी, सेम 30% सेम डे पे फॉल हुई थी। एंड येस्टरडे वाज अ न्यू थिंग, आई मीन मेरे भी इसके लिए बहुत नया है, मैंने भी कभी ऐसा देखा नहीं है मार्केट में। जैसे कि 2004 में जैसे मार्केट गिरा था, जब मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी, 2004 में चलते हैं हम। 2004 में एनडीए पावर में आने की अपेक्षा थी मार्केट में, और हुआ ये कि एनडीए नहीं आई और कांग्रेस केम इनटू पावर, और उसके वजह से आपने मेरे इलेक्शन एनालिसिस में भी देखा होगा, उसकी वजह से मार्केट 25% गिरी थी। ठीक है, अब इतनी बुरी हाल नहीं है हमारी कि कि गवर्नमेंट ही दूसरी आ रही, गवर्नमेंट तो हमारी वही आ रही। हाँ, सीट्स की जो कैलकुलेशन थी उसमें बड़ा वाला मिसमैच था कि एग्जिट पोल्स और एग्जैक्ट पोल्स में काफी डिफरेंस थे। बात वो भी नहीं है, बात मैं आप लोगों को, मेरे लिए जो नया लर्निंग है, जो मैंने कुछ नया ही देखा है इसमें, ये वाले मार्केट में, हालांकि अब फिर भी देखोगे ना तो मार्केट एक आधा कोई डाउन ट्रेंड में चल रही थी और उसके बाद मार्केट ने फॉल दिया, ये स्टिल ओके है, ये स्टिल एक्सेप्टेबल है। बट ये वाला जो है, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा है कि मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है और उसके बाद मल्टीपल वीक के सारे लॉस ब्रेक करता है और फिर वहां से ऊपर होता है। ये एक समथिंग रियली न्यू है मेरे लिए भी। दिस ओनली हम्बल्स मी डाउन कि आप कभी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो, मार्केट को जो करना है वो करेगा। आप आपके सोच से भी बहुत बाहर हो सकते। जैसे मैंने सोचा था कि ठीक है, अगर मान लेते आ भी जाएगा नीचे, तो मुझे लग रहा था एक गैप फिलिंग तक आ जाएगा और फिर यहाँ से शायद रिवर्सल लेगा। कहीं पर भी नहीं रुका कल मार्केट, ना ये लेवल पे, ना ये लेवल पे, ना ये लेवल पे, ना ये लेवल पे, और नया लो मार्केट उसने रिवर्स किया है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज एटलीस्ट माय बिगेस्ट लर्निंग एंड आई डोंट नो वेदर इट हेल्प्स यू गाइस, अगर मैंने मेरा लर्निंग शेयर किया तो।
लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन. अगर मेरी लर्निंग आप लोगों को हेल्प करती है तो आई विल डेफिनेटली शेयर मोर सच लर्निंग्स. बट दिस वॉज समथिंग न्यू दैट आई एक्चुअली मेड अ नोट ऑफ इन माई डायरी एटलीस्ट, दैट ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रीवियस डे यू सी अ फ्रेश ऑल टाइम हाई एंड देन द वेरी नेक्स्ट डे यू आर लुकिंग एट अ मल्टी डे लो. मतलब कितने तो सारे दिनों के इसने लोस को काट के इसने ये वाले लो बनाए थे. मतलब कितने सारे वीक्स के भी लोस को काटे थे. इनफैक्ट दिस वाज वेरी वियर्ड फॉर मी आल्सो. एनीवेज दैट्स माय लर्निंग. और मैंने ये भी लर्न किया कि विक्स जरूरी नहीं है उसी दिन कूल ऑफ हो जाए, स्पेशली व्हेन मार्केट अगर डाउन साइड पे निकल जाती है तो फिर विक्स और भी बढ़ जाती है. और एज एन ऑप्शन सेलर yesterday was definitely difficult. तो ये रहा हमारी एनालिसिस. If you have liked this particular video then do hit the thumbs up and I'll see you tomorrow. Bye bye, take care.